Hello students, welcome to my channel. In the last lecture we have discussed electric field due to an electric dipole on the axial and equatorial line. In this lecture we will discuss electric field due to an electric dipole at any point. Suppose we have, this is an electric dipole, let the 2 points A and B. Suppose minus Q charge is present on the point A and plus Q charge on the point B. Clear? Now let the length of the dipole is 2A and O is the center of the dipole. Suppose the observation point is P, which is at the distance R from the center of the dipole. Clear? Now we want to find out the value of electric field at the point P due to this electric dipole. Clear? So now in the previous lecture we have studied that P point is either on the axial line or the point P is on the equatorial line. But now this is point P which makes an angle, this line OP makes an angle theta with the axial direction. Clear? This is the general article. So now this is very important article. Clear? So now we know that point P is observation point and we want to find out the value of electric field at the point P. So now how to find out the electric field? We know that for an electric dipole, the dipole moment is given by the product of charge and its length of the dipole. It means that P vector is how much? Q into 2A. What is the direction of 2A? Its direction of 2A vector is from minus Q to plus Q. Its direction is from minus Q to plus Q. And similarly, the direction of P vector is from minus Q to plus Q. Suppose this is our P vector having the magnitude Q into 2A, but its direction is from A to B or minus Q to plus Q. Clear? So to calculate the electric field at the point P, we use a special method in this case. So what we will do? Suppose बच्चों हमने ये भी पढ़ा है, this is vector A and this is horizontal direction and this is vertical direction. Let the angle made by the angle, this vector A is theta with the horizontal. Clear? So what is the component of A vector along this direction? Its value is A cos theta. Clear? And the direction perpendicular to this one means direction is vertical. Its component is A sin theta. Clear? So what we have seen, we have an vector A and it makes an angle theta with the horizontal direction. So its component along horizontal is how much? A cos theta. Similarly, the direction which is perpendicular to this direction, the component is A sin of theta. So now what we have? Similarly, we have this vector P. Its direction is from minus Q to plus Q or from A to B. So the component of P vector along OP is how much? We will observe component of P vector किस साइड में? along OP. Along OP. The component of P vector along OP. अब OP P vector के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा. It means that its component is how much? P vector cos of theta. Clear? Because this is P vector and it makes an angle theta with the OP direction. So its component means component of P along OP is how much? P cos theta. So now this is what? This is P cos theta. So we can put here a vector. Now the direction is how much? इसकी डायरेक्शन क्या होगी?
along OP. Clear बच्चों? Now similarly component of P vector perpendicular to OP vector means this is what P vector and this is OP vector, and we have another direction which is perpendicular to OP direction, means this one. Clear? This direction is perpendicular to OP. So now suppose the name is OP dash, means component of P vector which is perpendicular to OP vector. Clear? Or I can say component of P vector along which direction? OP dash, because its name is OP dash. So ये भी लिख सकते हैं. Clear? Now this is what, using this theorem, if this is a cos theta, so its perpendicular direction is this one, and the component is how much? A sin theta. Similarly, the component along OP is P cos theta, so the component along its perpendicular direction is how much? P vector sin of theta. Means we have the two components of P vector, one is along OP and second is along OP dash. So now I will write down here component of P vector along OP. This is what? This is P vector cos of theta, and second one is component of P vector along OP dash. This is P vector sin of theta. Clear? So we will use these two components which are very much important. So we will understand what is the meaning for the electric field. Now we will revise the concept of electric field for the axial and equatorial line. Clear? So now what we have studied, suppose this is an electric dipole. Clear? So we have minus q and plus q, and if the observation point lies here, means observation point is on the axial line. If we extend this line, so point P is on the axial line. Let the distance of point P from the center of the dipole is r. This is the center of the dipole. So this point P is on the axial line, and its formulation is what? E axial का formulation क्या था बच्चों? 1/4 pi epsilon naught 2p r by r square minus e square raised to power 2. Clear? If we have a special case, if r is very large in comparison to a, तो formulation क्या बन जाता है हमारा? E axial क्या होगा? 1/4 pi epsilon naught 2p vector by r cube. Clear beta? So we will use this formulation. Now second case is what? This is again an electric dipole. This is the center of the dipole, and now the observation point P is on the equatorial line at the distance of r from the center. Now in this case we have already studied in detail so its field is outwards, its field is inwards, and the net field is in this direction, and this field is how much? E equatorial, and the formulation for E equatorial is how much? 1/4 pi epsilon naught P vector by r square plus r square plus a square raised to power 3/2. Okay, but if r is very large in comparison to a, then ये formulation हमारा क्या बन जाएगा? This is simply your r cube. Okay beta? So we will use these two formulations in the present article. So this is for axial and this is for the equatorial case. Clear? So now look at the point P. For
P cos theta. For this P cos theta which is along OP, this is along किस डायरेक्शन में है ये, along OP, observation point P lies on its axial line. This is very important. मतलब P cos theta ये वाली डाइपोल मूवमेंट है जो, इसके लिए पॉइंट P हमें कहाँ पे दिख रहा है, उसकी एक्सियल लाइन पे दिख रहा है। और कितने डिस्टेंस पे दिख रहा है ये P पॉइंट, ये वाली जो डाइपोल मूवमेंट है, जैसे ये P वेक्टर है और ऐसा ही हमारे पास ये क्या होगा बेटा, दिस इज P cos theta। इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे नजर आ रहा है, 8 डिस्टेंस पे नजर आ रहा है। मीन्स अगेन, सो लुक एट दिस डायग्राम, इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ डाइपोल, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ P। मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज E एक्सियल इज फ्रॉम -q टू +q। मीन्स जो डायरेक्शन P की है वही डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सियल लाइन की डायरेक्शन होगी। क्लियर, सॉरी वही डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। सो नाउ इन दिस केस दिस इज द डायरेक्शन फॉर डाइपोल मूवमेंट फ्रॉम O टू P। तो इसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा। क्लियर, सो नाउ व्हाट वी आर राइटिंग हियर, फॉर P cos theta ऑब्जर्वेशन पॉइंट P lies on its axial line. Suppose E1 vector is the electric field at point P ड्यू टू किसकी वजह से, P cos थीटा की वजह से। तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एक्सियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और इसमें हम एक कंडीशन ले लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, दैट R इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू दिस A डिस्टेंस। क्लियर, सो व्हाट विल बी द फॉर्मुलेशन, ओके। सो नाउ इस केस में हमारी डाइपोल मूवमेंट थी P, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³। क्लियर, बट यहाँ पे हमारे पास डाइपोल मूवमेंट कितनी है, P cos थीटा। तो फॉर्मूला जस्ट मॉडिफाई हो जाएगा, P को हम रिप्लेस कर देंगे P cos थीटा से। सो क्लियर, सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, ये 2 है, और यहाँ पे P था डाइपोल मूवमेंट, तो हमने P लगाया फॉर्मूले में। अब हमारे पास डाइपोल मूवमेंट कितनी है, P cos थीटा, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 2P cos थीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट। सेंटर हमारा ये है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, डिस्टेंस कितना है, R है, तो हमने यहाँ पे r³ लगा दिया। क्लियर, सो ये हमारी क्या आ गई बच्चों, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे, एट द पॉइंट P, किसकी वजह से, P cos थीटा की वजह से। क्लियर, सो नाउ व्हाट वी हैव, नाउ वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू दिस कॉम्पोनेंट। दिस कॉम्पोनेंट इज हाउ मच, P sin ऑफ थीटा। क्लियर, ये हमारा सेकेंड कंपोनेंट है P sin ऑफ थीटा। नाउ इसको कैसे लिखेंगे, फॉर P वेक्टर sin ऑफ थीटा विच इज अलोंग OP डैश, कौन सी डायरेक्शन में है वो, OP डैश की डायरेक्शन में है। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं विच इज अलोंग OP डैश। क्लियर, सो दिस डाइपोल मूवमेंट कंपोनेंट विच इज P वेक्टर sin ऑफ थीटा, इसके लिए ये पॉइंट P हमें कैसे नजर आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, मतलब इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P lies on its equatorial line। ऑब्जर्वेशन पॉइंट P sin थीटा के लिए हमें किस तरह का दिख रहा है, इस तरह दिख रहा है जैसे वो उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे हो। इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मुलेशन हमारे पास ये वाला हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें देखनी हो, अगर ये डायरेक्शन हमारी P की है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उससे उल्टी है। ठीक है ना, हमने P कहाँ चल रहा है, फ्रॉम -q टू +q, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट चल रहा है। ठीक है, सो नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर sin ऑफ थीटा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, लाइक दिस। ये पॉइंट समझ आया बच्चों, बिकॉज P वेक्टर sin ऑफ थीटा की डायरेक्शन है OP डैश, इस तरफ आ रहा है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पैरेलल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो E2 वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P sin थीटा। हम लिख देते हैं हम यहाँ पे, सपोज E2 वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, एट द पॉइंट P, एट पॉइंट P किसकी वजह से, ड्यू टू P साइन ऑफ थीटा। क्लियर, P साइन ऑफ थीटा की वजह से। नाउ ये कैसे निकालेंगे हम E2, यूजिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेटोरियल लाइन, क्योंकि ये हमें इक्वेटोरियल लाइन पे नजर आ रहा है। ओके, इक्वेटोरियल लाइन में हमारा फॉर्मुलेशन कैसा था, अगर हमारे पास डाइपोल मोमेंट P है तो फॉर्मूला है ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय r क्यूब। अब हमारे पास डाइपोल मोमेंट कितनी है बच्चों, P साइन थीटा, तो फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट P को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, P साइन थीटा के साथ। तो आंसर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा बाय r क्यूब। क्लियर, बट इसमें एक चीज हमें अगर वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना है तो हमने देखा था इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, P की डायरेक्शन ये वाली है। तो यहाँ पे क्या आता है बच्चों, नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे भी क्या आएगा साथ में, नेगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ E2 इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P2 साइन ऑफ थीटा, सॉरी P साइन ऑफ थीटा। क्लियर, नाउ वी हैव टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स at the point P. First is E1 vector and second is E2 vector. So we will find out their resultant. Now, पहले देखते हैं, this is what? This is E1 vector. This is what? E2 vector. This is 1/4 pi epsilon naught, सेम आ रहा है दोनों में। क्लियर, इसको ऐसे -1 लिख देते हैं। This is 2p cos theta, इसमें है p sin theta divided by r cube divided by r cube. So now these are the different values. ठीक है, ये बराबर नहीं है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, इसके बीच में आएगा। कहाँ पे आएगा हमें वो नहीं पता, अभी हम फाइंड आउट करेंगे किस तरह, यूजिंग द वेक्टर एनालिसिस। क्लियर, सो नाउ वी हैव डिराइव्ड टू फॉर्मुलेशंस। मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ। E1 हमारा कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई r क्यूब, मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख लेते हैं सिंपल। सो दिस इज E1 वेक्टर, और E2 हमारा कितना आया बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज p साइन ऑफ थीटा बाई r क्यूब। क्लियर, और ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर लग रहे हैं, ये OP की डायरेक्शन में है और ये OP की जो परपेंडिकुलर लाइन थी OP डैश उसके ऑपोजिट है। मतलब इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना है हमारा, ये थीटा कितना है बेटा, थीटा इज 90 डिग्री। थीटा हमने ऑलरेडी इसको दिया, सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे, दिस इज लेट द एंगल फाई इज 90 डिग्री। ओके, नाउ फाइंड आउट a resultant of E1 and E2. So now we have two vectors, first is E1, second is E2 at the angle 90 degree. So resultant उनका क्या होगा, E net. Using the vector formulation we have E1 square plus E2 square plus 2E1 E2, हमने पढ़ा है ना ये विद फॉर्मूला। लेट द टू वेक्टर्स P and Q separated by an angle theta. The resultant R is how much, P square plus Q square plus 2PQ cos of theta, if theta is angle between P and Q. But now what is the angle between E1 and E2? This is phi. So this is cos of phi, and phi is how much, that is 90 degree. For cos 90 we know that its value is 0. So ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। तो E net हमारा क्या आया बच्चों, this is under root of E1 square plus E2 square। क्लियर, सो यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं। अगर हम इसकी वैल्यूज रखेंगे तो क्या बनेगा, देखो। So E1 square is how much? This one square. E2 square,
दिस स्क्वायर। क्लियर? सो ये वैल्यूज रख देते हैं, तो क्या बनेंगी वैल्यूज? सो नीचे लिख लेते हैं। सो ई नेट इज अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और आएगा 4p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई r रेज़्ड पावर 6। क्लियर? नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बेटा? e2 स्क्वायर। e2 स्क्वायर हमारा क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और साथ में आएगा हमारा p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई r रेज़्ड पावर 6। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें बाहर आ रही हैं देख लेते हैं हम। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अंडर रूट से जब बाहर लेके आएंगे इसको तो क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये r रेज़्ड पावर 6, ये r रेज़्ड पावर 6, ये भी कॉमन आ जाएगा, और बाहर आके क्या बन जाएगा हमारा? r रेज़्ड पावर 3। यहाँ से p स्क्वायर, तो बाहर क्या बन जाएगा? p। अंडर रूट में क्या बचेगा बेटा? ये भी बाहर आ गया, r6 भी बाहर आ गया, p स्क्वायर भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा हमारे पास? 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास बच्चों? सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं आगे। सो नाउ वी नो दैट ई नेट इज हाउ मच? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब। इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक हमारे पास क्या है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। सो नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं हम। ई नेट बच्चों हमारा क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos square theta plus 1. So this is what? This is our answer. What is the answer? The electric field at the point P. This is what? This is E net. Okay, so now also we want to find out the direction of this E net. So now कैसे direction find out करेंगे? ये सारा एंगल था हमारा फाई, ये सारा एंगल, ठीक है, ये एंगल था हमारा बेटा फाई। नाउ सपोज दिस एंगल इज अल्फा। नाउ डायरेक्शन इज व्हाट? डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? लेट ई नेट वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा किसके साथ? विद E1 वेक्टर। ये हमारा क्या है बेटा? E1 वेक्टर है, ठीक है। अगर हम इस तरह की एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर लें तो हमें क्या दिख रहा है वहां पे? दिस tan alpha can be calculated as using this triangle, suppose, or we can also use the formulation for the vectors. So what is the formulation for the vectors? We have studied, if two vectors are there, this is Q, this is P, they are at an angle theta, so the resultant, which is R vector, makes an angle alpha with the P vector. So what is the formulation? So tan alpha is Q sine of theta divided by P plus Q cos of theta. We have this formulation which we have studied in class 11th. Clear? Now अब इस केस को हम समझें। हमारे पास P की वजह क्या है? यहाँ पे E1 है, Q की वजह क्या है? E2 है, यहाँ पे एंगल स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन में थीटा है, हमारे पास कितना है बेटा? फाई है, और फाई की वैल्यू कितनी है? फाई इज 90 डिग्री। क्लियर? सो नाउ आई विल रिप्लेस द कंपोनेंट्स। सो व्हाट विल बी द tan अल्फा? सो यहाँ पे है Q साइन थीटा, Q हमारा कौन है? E2, सो दिस इज E2 साइन ऑफ थीटा, और इसमें थीटा कितना है? फाई, ठीक है, और डिवाइडेड बाय P हमारा कितना है?
this is E1 plus E2 cos of phi। वैल्यूज रख देते हैं। फाई हमारा कितना है बेटा 90 डिग्री है। सो ये क्या बना E2 साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय E1 प्लस E2 कॉस 90 डिग्री। साइन 90 हमारा 1, कॉस 90 कितना हो गया 0। क्लियर। सो tan अल्फा क्या आया हमारा, दिस इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाई E1, क्योंकि ये हमारा साइन 90 1 हो गया और साइन कॉस 90 0 हो गया, तो ये टर्म कैंसिल होगी नीचे वाली। ठीक है। सो नाउ व्हाट इज E2, दिस इज E2 एंड व्हाट इज E1, दिस इज E1। व्हेन आई विल डिवाइड दिस E2 बाई E1, ये सारी टर्म सेम है, नीचे भी सेम है, ऊपर है P साइन थीटा और इधर क्या है 2P cos थीटा। जब डिवाइड करेंगे तो बनेगा क्या बेटा, ये बनेगा tan थीटा बाई 2। इट मीन्स दैट व्हाट इज द एंगल, अल्फा इज व्हाट tan इनवर्स tan ऑफ थीटा। सो दिस इज द एंगल made by the resultant electric field with the direction of E1, means with the direction of OP vector. Clear? So now in this way we can find out the answer. So now in this case we will also discuss sub cases. So now in this case what we have, if theta is 0 degree, अगर ये थीटा 0 हो जाए तो ये पॉइंट P चल के कहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट P चल के यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। अगर ये थीटा कितना ऐसे घुमा देना इसको, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो ये वाला वेक्टर जो इस तरह से है, ये घूम के इस तरह पॉइंट P यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। सो इसका मतलब इस जनरल फॉर्मूले से हम एक्सियल वाला रिजल्ट भी निकाल सकते हैं और इक्वेटोरियल वाला रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। तो कैसे करना है हमें, ई थीटा 0, थीटा 0 तो बनेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब, और ये हमारा बना बच्चों 3 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस हमारा 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है 1। क्लियर। तो ये बना 3 इंटू 1 प्लस 1 विच इज 4, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 का अंडर रूट 2, सो दिस इज 2P बाई आर क्यूब। क्लियर। ये हमने ऑलरेडी बोला था एक्सियल केस में रिजल्टेंट क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का 2P बाई आर क्यूब। क्लियर। नाउ इफ थीटा इज 90 डिग्री, सो व्हाट वी हैव इन केस ऑफ थीटा 90 डिग्री, व्हाट इज cos 90, cos 90 इज 0। तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी हमारी कैंसिल हो जाएगी। सो इस केस में फॉर्मूलेशन क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज P बाई आर क्यूब, दिस इज 0 प्लस 1 मतलब सिर्फ 1 बचा, तो आंसर क्या है हमारा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब। क्लियर। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया फॉर द एक्सियल केस, दिस इज फॉर द इक्वेटोरियल केस। क्लियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, सो न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ जी बच्चों, इसके बाद एक न्यूमेरिकल लेते हैं हम। सो व्हाट इज द न्यूमेरिकल, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ length 40 micrometer and consisting 2 charges of plus minus 20 microcoulomb. Find the electric field at a distance of r which is 30 centimeter from center
ऑफ डाइपोल फॉर थीटा इक्वल टू 0, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लियर? सो ये हमें न्यूमेरिकल दिया बच्चों। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। और डाइपोल की लेंथ उन्होंने हमें कितनी दे दी? 40 माइक्रोमीटर। क्लियर? एंड डाइपोल में दो चार्जेस हैं प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम के। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कहाँ पे करना है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। और है वो पॉइंट कहाँ पे? थीटा 0 पे भी है, 30 पे भी है और 90 पे भी है। क्लियर? हमें तीन बेसिकली न्यूमेरिकल दिए हुए हैं इसमें। सो नाउ व्हाट वी हैव, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और ए के ऊपर चार्ज है सपोज -20 माइक्रोकूलम और इसके ऊपर चार्ज है +20 माइक्रोकूलम। क्लियर? So now let the length of the dipole is how much? We have 40 micrometer. So 2a is what? 40 micrometer means 40 into 10⁻⁻6 meter. Clear? So now Q is what? 20 microcoulomb, which is 20 into 10⁻⁻6 coulomb. So 2a is how much? 40 into 10⁻⁻6 meter. Clear? We want to find out the value of electric field at the distance r 30 centimeter from the center of the dipole. और ये हमारा कोई observation point है which is at a distance of 30 centimeter. ये किसकी वैल्यू है बेटा? r की वैल्यू है। r हमें कितनी दे दी उन्होंने? r is 30 सेंटीमीटर। कहाँ पे? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल से। 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर? इट इज क्लियर फ्रॉम द स्टेटमेंट दैट द वैल्यू ऑफ r इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू द वैल्यू ऑफ e. सो वी हैव r is very large in comparison to a. So we will use that formulation in which r is very large in comparison to a. So now this is our first case, which is theta equal to 0, means we are on the axial line. So we are calculating if theta is 0, then point P lies on axial line. Clear? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूलेशन क्या होता है बेटा? ई एक्सियल क्या होता है हमारा? मैग्नीट्यूड अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं? एट द पॉइंट P. तो ये फॉर्मूलेशन क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आता है इसमें? 2p/r³। क्लियर? अगर हम P फाइंड आउट कर लें, R हमें दिया हुआ है ये 30 सेंटीमीटर, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So what is our P? P is what? Q into 2a. Q हमारा कितना है? 20 माइक्रोकूलम. 20 into 10⁻⁻6 and 2a is 40 into 10⁻⁻6. Clear? So P हमारा बच्चों कितना आ गया? 800. 20 into 40 800 into 10⁻⁻12. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 into 10⁻⁻10, and the unit is कूलम मीटर, बिकॉज चार्ज का यूनिट कूलम, डिस्टेंस का मीटर. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं. E at point P कब? when theta is 0. So answer is 9 into 10⁻⁹. The value for 1/4 pi epsilon naught is how much? 9 into 10⁻⁹. So this is 2 into P. क्या हमारी वैल्यू कितनी है बेटा? 8 into 10⁻⁻10 divided by, so this r³. r हमारा बच्चों कितना है? 30 सेंटीमीटर. ठीक है, सो इसको हम 30 सेंटीमीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं. दिस इज 3 into 10⁻⁻1 मीटर. क्लियर? सो दिस इज 3³ into 10⁻⁻3. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर कितना आया? 9 into 2 into 8 डिवाइडेड बाय हमारा कितना आया? 27. अब पावर्स को कलेक्ट कर लेते हैं. ये हमारी
इट इज़ 10⁻⁹ और ये -3 ऊपर चल के कितना हो जाएगा 10⁻³ एंड दिस इज़ व्हाट 10⁻⁻10। ठीक है बेटा। सो नाउ बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। ये 9 कैंसिल हो जाएगा 27 से, नीचे आएगा 3 एंड दिस इज़ व्हाट 16/3 इंटू 10⁻, ये 9 और 3 कितने 12 और ये -10, ये कितना 10⁻²। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, दिस इज रफली 5.33 इंटू 10⁻²। क्लियर। सो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। क्लियर बच्चों। तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया किसके लिए, थीटा इक्वल टू 0 के लिए। यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ थीटा इज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच 5.33 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट इज फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सो नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड केस एंड द थीटा इज हाउ मच 90 डिग्री। अगर हमारा थीटा 90 है तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा बच्चों, यहाँ चला जाएगा। क्लियर। दिस इज नाउ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड दिस एंगल थीटा इज 90 डिग्री और ये आर हमारा सेम कितना है 30 सेंटीमीटर। इसको 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब थीटा इक्वल टू 90 के लिए हमारे पास फॉर्मूलेशन क्या है, ई इक्वेटोरियल कहाँ पे, एट पॉइंट पी पे। क्लियर। सो फॉर्मूलेशन हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। ठीक है। तो इसकी वैल्यूज रख देते हैं, ई एट पॉइंट पी कब, जब थीटा कितना हमारा 90 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 9 इंटू 10⁻9 इंटू पी हमारा कितना है 8 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय r³। r मतलब 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर क्यूब। सो ये बना 3³ इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा 9 इंटू 8/27 इंटू ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, ये बनेगा 9 + 3 12 -10 से 10⁻² बनेगा। ठीक है। और ये 9 कैंसिल हो गया, 3 आ गया और ये इसका आंसर है रफली 2.66 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम। इस तरह से हमने थीटा इक्वल टू 90 के लिए भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो लिख देते हैं आंसर हमारा कितना आया, इफ थीटा इज 90 डिग्री तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 2.66 इंटू 10⁻² न्यूटन पर कूलम। क्लियर बच्चों। नाउ थर्ड केस। थर्ड केस हमारा किस तरह से है, थीटा हमारा उन्होंने कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक है। तो अब पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पे आएगा, अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा यहाँ पे है, दिस इज पॉइंट पी और ये एंगल हमें कितना दे दिया, दिस एंगल इज 30 डिग्री और आर कितना है हमारा 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। क्लियर। सो व्हाट इज द फॉर्मूलेशन, ई एट पॉइंट पी फार्मूलेशन है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ √3 cos² थीटा +1। वी हैव दिस फॉर्मूलेशन। ठीक है। अगर थीटा हमारा 30 डिग्री है तो cos थीटा कितना आएगा, cos 30 हमारा होता है √3/2। ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यूज यहाँ पे रख देनी है। ठीक है। सो नाउ व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज इक्वल टू, नाउ वैल्यूज रख देते हैं इसकी, दिस इज 9 इंटू 10⁻9 इंटू पी हमारी कितनी है बेटा 8 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 10⁻⁻3 बिकॉज दिस इज r³। क्लियर। हमने ऑलरेडी 2-3 बार कर लिया इसको। एंड दिस इज व्हाट √3
किस चीज़ का अंडर रूट है ये? 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा बच्चों हमारा? दिस कॉस 30 इज अंडर रूट 3/2, ये बन जाएगा 3/4। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज हाउ मच? इस वैल्यू को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा कितना आया था? 2.66 इंटू 10⁻²। ठीक है, और ये बच्चों हमारा कितना बना? अंडर रूट ऑफ दिस इज 9/4 प्लस 1। ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इज हाउ मच? 2.66 इंटू 10⁻²। दिस इज वॉट? 9/4 is roughly 2.25 plus 1, so which is how much? 3.25. so आप अपने कैलकुलेटर से कर लेना, 3.25 का अंडर रूट होता है रफली 1.80। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। दिस इज व्हाट? 1.80। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया बच्चों? एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री विच इज इक्वल टू रफली 4.8 इंटू 10⁻²। क्लियर? और यूनिट इसका क्या है बच्चों? न्यूटन पर कूलम। क्लियर? तो इस तरह से हमने एक प्रॉब्लम के अंदर 3 तरह की सिचुएशंस देख ली। हमने थीटा 0 मतलब एक्सियल के लिए भी कर लिया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब इक्वेटोरियल के लिए भी किया, और एनी पॉइंट मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, सो इस तरह के न्यूमेरिकल आप अपने खुद लेवल पे ट्राई करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ व्हाट वी हैव, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इलेक्ट्रिक डाइपोल in uniform electric field. So now this is also very important article. Suppose we have a region in which uniform electric field is acting, and this is the representation of uniform electric field which is represented by the parallel lines. So this is what? Uniform electric field means in this region for all the points the value of electric field is same. Clear? So now what we have a problem in which an electric dipole is placed in the uniform electric field. Let this is point A, this is point B. Suppose minus q charge is present on the point A and plus q is here on the point B. So we know that when electric field is acting and charges are present in the electric field, so these two charges minus q and plus q will experience a force, and the force which is given by this formulation F equal to QE. If charge is positive, then the direction of force is same as that of electric field. If charge is negative, then the force will be in the opposite direction to the electric field. Clear? Suppose हम लिख लेते हैं इसको. Suppose we have an electric dipole placed in uniform electric field at an angle theta with the E vector. ठीक है, अगर ये डाइपोल हमारे पास पड़ा है, इसका डायरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी P वेक्टर है जो डाइपोल मूवमेंट का वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन E के साथ कितनी है? एट द एंगल थीटा है। ठीक है, लेट लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2a, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, लेंथ हम कितनी लेते हैं? 2a, और यहाँ पे हम लेंथ किसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं? AB के साथ, इसका मतलब AB इज हाउ मच? 2a। ठीक है बच्चों, सो नाउ these two charges when they are under the effect of this external electric field, so this charge which is plus q will feel a force in the direction of applied electric field.
and this charge which is negative in nature will feel a force in the direction opposite to the electric field. Clear? I have already mentioned if charge is positive, then the direction of force is same as that of electric field. But if charge is negative, then the direction of force is opposite to the electric field. Clear? So now what will happen? If these two charges will feel a force, this charge will feel a force which is QE. This will also feel a force which is QE. But the directions are opposite. So now two forces are acting on the two corners of the dipole. Then what will happen? Due to these two forces, dipole will rotate. Due to these forces, dipole will rotate. It means that dipole अगर रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे क्या लग रही है? कुछ टॉर्क लग रही है. And we have to find out the value of the torque. And torque the formulation क्या है हमारे पास? Torque is what? Force into perpendicular distance. क्लियर बच्चों? So now अगर हमारे पास फोर्स कितनी है यहाँ पे? QE. Torque is what? Tau. And what is perpendicular distance? This is point A, this is point B. If we complete this triangle, this is another point, suppose P. So what is the distance which is perpendicular in nature between the two forces? We have first force, this is second force. It means that PB, which is the perpendicular distance between the two forces. So we will multiply this by BP. Clear? So now we have to find out the value of this BP. If this angle is theta, this angle is also theta. We already know that value of AB. AB कितना है हमारा? AB is 2A. So using triangle ABP, what we have? This is थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर. ये हमारा क्या बन गया? बेस. और ये क्या बन गया? हाइपोटेनस. क्लियर? सो नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस. दिस इज बीपी ओवर बच्चों क्या आएगा? एपी. ठीक है, तो बीपी हमारा कितना निकल गया? सो बीपी इज एबी साइन ऑफ थीटा. और इसका मतलब बीपी हमारा कितना है? AB कितना है? A से B which is 2A. So this is 2A sine of theta. So I can fill the value here. So torque is what? QE into 2A sine of theta. And we know the factor Q into 2A is what? This is P. So we have PE sine of theta. So this is what? Torque produced in the dipole. This is how much? PE sine of theta. We can also write down in the vector form because torque is a vector quantity. Clear? So torque is given by P cross E. Clear बच्चों? So now this is what? This is the torque produced in the electric dipole when it is placed in the यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब क्या हुआ? जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो क्या करेगा? घूमना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, और घूमेगा तो इसका मतलब इसके अंदर क्या पैदा हो गई है? टॉर्क पैदा हो गई है. ठीक है, और अगर हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें इसका, इफ थीटा इज 0 डिग्री, मतलब अगर ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. और डाइपोल हमारा कैसे पड़ा है? इस तरह से पड़ा है. दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू. क्लियर? अगर डाइपोल इस तरह से पड़ा है मतलब डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये वाली है और डाइपोल की डायरेक्शन भी ये वाली है. तो इस केस में हमारा थीटा कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया.
अगर थीटा 0 हो गया तो ये वाला चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, इस डायरेक्शन में, और ये वाला चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, इस डायरेक्शन में, और दोनों फोर्सेस एक दूसरे की क्या लग रही हैं, ऑपोजिट लग रही हैं। तो ये फोर्सेस आपस में क्या कर जाएंगी, कैंसिल कर जाएंगी, और इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है, हम ये वाले फॉर्मुलेशन से भी निकाल सकते हैं, बिकॉज हमने क्या पढ़ा है, टॉर्क हमारा गया है PE साइन ऑफ थीटा। अगर थीटा 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, PE साइन ऑफ 0। साइन 0 कितना होता है बच्चों, 0, तो हमारा टॉर्क कितना होगा, 0। ठीक है, इस तरह का केस क्या है, स्टेबल केस है, इसमें टॉर्क नहीं लगेगा। क्लियर। अगर हम दूसरा केस ले लें, सपोज थीटा इज 90 डिग्री, इस तरह का केस ले लें। नाउ थीटा इज 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक इस तरह पड़ा है और फील्ड इस तरह लग रहा है। ठीक है, और ये एंगल कितना हो गया, थीटा हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, इस केस में ये वाले चार्ज पे फोर्स किस तरह लगेगी, इस तरफ लगेगी, माइनस क्यू पे फोर्स किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी, और ये जो डाइपोल है दैट विल फील द मैक्सिमम टॉर्क, बिकॉज टॉर्क इज व्हाट, PE साइन ऑफ थीटा, और साइन थीटा, थीटा कितना हो गया अब हमारा 90 डिग्री, साइन 90 कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया, तो टॉर्क हमारा हो गया PE इंटू 1, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है तो टॉर्क भी क्या होगा हमारा, मैक्सिमम टॉर्क होगा। टॉर्क इज मैक्सिमम। क्लियर। So now we have studied, if an electric dipole is present in the uniform electric field, it will have a torque, and due to the torque component, it will try to rotate and it will set itself in the direction of electric field. मतलब ये ऐसा है तो घूम के इस तरह आने की कोशिश करेगा, अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर लेगा, सेट कर लेगा। ठीक है, एक और आर्टिकल आता है इसमें, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी। अगर डाइपोल घूम रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से, तो ये अपनी नेचुरल पोजीशन से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर ये नेचुरल पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया तो कोई भी चीज़ अगर अपनी नेचुरल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है तो वो क्या स्टोर कर लेती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेती है। ठीक है, सिमिलरली अगर ये डाइपोल घूम रहा है अपनी नेचुरल पोजीशन से, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी stored in the dipole that we have to find out. Clear? So now this is also very important. So next article is potential energy of electric dipole in uniform electric field. ठीक है बच्चों, so now what we have an electric field which is uniform, और इसके अंदर क्या पड़ा है, कोई हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पड़ा है, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है हमारा A और यहाँ पे पॉइंट है B। ठीक है, तो अब जब फोर्स लगेगी, दिस इज प्लस क्यू ई फोर्स एंड दिस फोर्स इज हाउ मच, माइनस क्यू ई। This force is along the direction of applied electric field and this is opposite to applied electric field. Clear? So now when these two forces are acting on the dipole, so torque will be there, and due to this torque component, this dipole will rotate and this dipole will try to align itself in the direction of अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले ये इस तरह था और अब ये घूम के इस तरह सेट होने की कोशिश करेगा। क्लियर? कितना टाइम होता रहेगा, जितना टाइम हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते रहेंगे। ठीक है, सपोज द इनिशियल एंगल विद द फील्ड इज θ1, सपोज नाउ द फाइनल एंगल इज θ2। इट मीन्स दैट डाइपोल मोशन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, θ1 से, और कहाँ तक गई, वो θ2 तक गई। ठीक है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल ने स्टोर कर ली, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाट इज टॉर्क, दिस इज PE साइन ऑफ थीटा। क्लियर? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी, हमने बच्चों देखा है, सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। दिस इज व्हाट
a spring attached with a mass. This is the natural position of the spring. When the spring is extended by a force, हमने उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा दी, तो ये क्या होगी, उसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी. ठीक है, तो हमने फोर्स कितनी लगाई, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स. जितना हम उसमें एक्सटेंशन पैदा करना चाहते हैं उतनी ही हमें यहाँ पे फोर्स लगानी पड़ेगी. द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग दिस स्प्रिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विल स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग. मतलब ए से बी जब हम गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा ना. द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग. सो जैसे ही हम बी पे जाके उसको छोड़ देंगे, सो दिस स्प्रिंग विल कम बैक ड्यू टू इट्स restoring force, and the amount of potential energy then convert into its kinetic energy. Clear? Similarly, when the dipole is rotating like this, so the amount of work done on the dipole will store as a potential energy. Clear? So now work done होता क्या है बच्चों, अगर तो होती है हमारे पास ये लीनियर मोशन, तो वर्क का फॉर्मुलेशन क्या है, एफ डी एक्स. अगर हम स्मॉल वर्क डन पहले फाइंड आउट करते, बट हमारे पास अब क्या है यहाँ पे, रोटेशनल मोशन. तो रोटेशनल मोशन में वर्क डन क्या होता है हमारे पास, ठीक है. सो वर्क डन इज इन द लीनियर मोशन हमारे पास फोर्स होता है, और जो दूसरी हमारे पास रोटेशनल मोशन है उसमें हमारे पास क्या होता है, टॉर्क होता है. ठीक है, इसमें हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट डी एक्स लेते हैं, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा लेते हैं. हमने थीटा 1 से थीटा 2 जाने के लिए पहले इसके अंदर छोटा सा एक एंगल डिफाइन कर देंगे. लेट द एंगल इज डी थीटा. मतलब इसके अंदर ऐसे थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हुई, कितनी, डी थीटा. तो पहले हम डी थीटा के लिए वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, देन उसको इंटीग्रेट कर देंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज डी डब्ल्यू. डी डब्ल्यू इज व्हाट, पी की वैल्यू, टॉ की वैल्यू रख देते हैं, पी ई साइन थीटा d theta. So now we will integrate to find out the work done. So this is P E sin theta into d theta. So work done. P हमारा क्या है, P is Q into 2a. ये डाइपोल के चार्जेस क्या है, कांस्टेंट. डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस क्या है, कांस्टेंट. इसका मतलब P की वैल्यू हमारी क्या है, कांस्टेंट. ठीक है. और हमने कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या है, कांस्टेंट. तो इसका मतलब P भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है. तो दोनों चीजें क्या आ गई, बाहर आ गई. और चेंज क्या हो रहा है, पहले एंगल थीटा 1 था और फाइनल पोजीशन कहाँ पे जा रहे हैं, थीटा 2 पे. मतलब एंगल क्या है हमारा, वेरिएबल है. सो दिस इज थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा, एंड द इनिशियल वन कंडीशन इज थीटा 1, और जहाँ कहाँ पे रहे हैं, थीटा 2 पे. ठीक है. So now what is this? This is PE. Integration of sin theta is what? Minus cos theta from theta 1 to theta 2. So what we have? So the work done is minus PE. माइनस बाहर निकाल लिया हमने, तो ये बनेगा cos theta 2 minus cos थीटा 1. अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो क्या बन जाएगा, PE cos थीटा 1 माइनस PE cos थीटा 2. क्लियर. सो ये हमारी क्या आ गई, एनर्जी एट द इनिशियल पॉइंट, एंड दिस इज व्हाट, एनर्जी एट द फाइनल पॉइंट. क्लियर. बिकॉज इनिशियल एंगल इज थीटा 1 एंड फाइनल एंगल इज थीटा 2. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, हमें अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ से यहाँ तक लेके आना पड़ा है तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क करना पड़ेगा. ठीक है. मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन विल स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द डाइपोल. इसका मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, which is equal to W, and which is further equal to PE
cos theta 1 minus PE cos theta 2. Clear? So now we have seen that maximum torque will be there when the dipole is perpendicular to the electric field. So if theta 1 is 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डाइपोल है दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री, तो cos 90 हमारा कितना होगा, cos 90 होगा हमारा 0। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी आ गई, दिस इज माइनस, ये हमारा 0 हो गया, माइनस PE cos थीटा 2। मतलब हमें सिर्फ कौन सा एंगल चाहिए, वो एंगल चाहिए जहां पे जाके वो रुक रहा है, मतलब थीटा 2 क्या है, जहां पे जाके वो रुक रहा है। ठीक है, सो नाउ वी हैव दिस कंडीशन। अगर इसको हम ऐसे भी जनरलाइज कर दें कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, डाइपोल कोई इस तरह की पोजीशन पे पड़ा है पहले, और जाके वो फिर किसी और पोजीशन पे रुक रहा है जहाँ पे एंगल थीटा है। मतलब थीटा 1 को हमने क्या ले लिया बच्चों, 90 डिग्री ले लिया, और थीटा 2 को हमने क्या ले लिया, कोई जनरल एंगल थीटा ले लिया। तो ये फॉर्मूलेशन क्या बन जाएगा हमारा, फॉर्मूलेशन बन जाएगा माइनस PE cos ऑफ थीटा। क्लियर? सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस। क्लियर? सो ये आप कर लेना। थैंक यू। इफ यू लाइक माई लेक्चर्स प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल